प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of nth order with constant coefficient. Okay, this will be the first topic. Now what is meaning? Linear differential equation. Linear differential equation means we have like this equation like this: an nth order derivative, okay, d nth order derivative y is dependent variable, x is independent variable. This will be a naught, a1, okay, need not be n, a1 n minus 1 y upon x power n minus 1 plus a2 n minus 2 y x n minus 2, this is nth minus 2 order derivative, plus an minus 1 dy by dx plus a and y is equals to rx. Rx is a function of x. Okay, so this type of differential equation is called linear differential equation, where a naught, a1, a2, an minus 1, an all are constant. ये सभी constant है. Okay, these are numbers, simply constant, and it's a simply okay constant number: a naught, a1, a2, an minus 1, an. This is nth order linear differential equation with constant coefficient. Now how we solve this differential equation? We take a simple form, a second order linear differential equation. Okay, so just we take a very simplest form and then we proceed for higher orders. So let second order linear differential equation. So it will be a d2y by dx2 or not plus a1 dy by dx plus a2y is equals to some function of rx. So this is your second order linear differential equation. Okay, first we practicing on such type of problem, very simple form, second order differential equation. Okay, you have studies about first order linear differential equation in your last classes. Okay, I just proceed on that, how we solve this type of differential equation. Okay, तो first of all understand this. तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में, इसका जो सोल्यूशन होगा दो पार्ट में होगा, इसलिए दो पार्ट में उसको सॉल्व करके निकालेंगे. तो टू सॉल्व दिस वी proceed like this. So first of all, for okay, our solution जैसा कि हमने कहा दो पार्ट में होगा, तो solution will be, इसका जो solution होगा, solution will be two parts. Y is equals to complementary function plus particular integral. इसको बोलते हैं CF, इसको बोलते हैं PI in short. Okay, CF and PI. So for CF, this is our the concept. For CF, इस पार्ट के लिए
इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेट दिस विल बी स्टार फॉर CF, वी कन्वर्ट इट इन होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड RX को हटाकर 0 यहाँ करके हम एक इक्वेशन, एक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर CF वी कन्वर्ट इनटू और A नॉट dy by dx2 प्लस A1 dy by dx प्लस A2y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ओनली फॉर CF, ये सिर्फ ये पार्ट देगा। ओके, इसके लिए अब हमने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया होमोजीनियस फॉर्म में। नाउ अब इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, व्हाट इज दिस? ऑक्सिलरी इक्वेशन, वी जस्ट रिप्लेस d dx. This is an operator, we can write in this form like d. तो इससे क्या होगा, आपका ये जो एक्सप्रेशन है, जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन लेट डबल स्टार, देन इक्वेशन डबल स्टार विल कन्वर्ट, this double star will convert into this form d a naught d2y plus a1 dy plus a2y is equal to 0. okay, this converts in this form. अब इसमें हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, नाउ लाइक दिस इक्वल्स टू 0. ओके, we can write like this. So this is an operator part which operate over y and get equal to 0. So this is an expression. Now auxiliary equation nothing, simply we want to factorize this operator into linear product. Linear product function के फॉर्म में इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं। इसके लिए हम auxiliary equation हमेशा बनाते हैं। तो this will become a naught d square a1 d plus a2 equal to 0. We get in this form. Okay, now after factorization we get d is equals to, obviously we get two roots m1 m2. okay, m1 m2 सीधा चार फॉर्म लगा करके हम m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस विल बिकम m1 m2। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो आपका ऑपरेटर है, दिस कैन रिटर्न एज d माइनस m1 एंड d माइनस m2 y इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका इस फॉर्म में हो गया। तो हमारा इसको फैक्टराइज करने का उद्देश्य यही है, इसको हम लीनियर फॉर्म में लगा सकें। ठीक है, तो और लीनियर ऑपरेटर का आप उद्देश्य फॉर्मूला जानते ही हैं। ओके, उस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते थे वहां पे, वी गेट इन दिस फॉर्म। तो नाउ केस वन, ओके, केस वन, इफ m1 is not equal to m2, m1 is not equals to m2 and m1 m2 are real. okay, in this case आपको बस पहले समझ लेना है, in this case our CF part YCF, y का ये CF part, this will become C1 e to the power m1x plus C2 e to the power m2x. This is case 1, CF part case 1, where C1 C2 is arbitrary constant, where C1 and C2 are arbitrary constant. Okay, now case 2, if m1 is equals to m2, यदि दोनों बराबर हो एंड रियल और रियल भी हो, तो उस केस में YCF
becomes C1 plus x C2 e to the power m1 x. m1 m2 बराबर है तो कोई भी, ठीक है। तो दिस इज YCF when m1 is equals to m2. Now next is case 3. If m1 is equals to alpha plus I beta and m2 उसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा, या यू कह सकते हैं, और ये d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, एक, ठीक है, यहाँ अलग अलग कर रखा था। इन दैट केस वी गेट, हमें मिलेगा YCF इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x प्लस ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो दिस आर द 3 केसेस, ये 3 केसेस हमारे बनेंगे, ओके। और इनके आधार पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का CF पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। नाउ CF पार्ट हमने थोड़ा सा क्लास में डिस्कस भी किया था। नाउ वी मूव ऑन पर्टिकुलर इंटीग्रल। Now move on particular integral, okay। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, a0 d2y by dx2 प्लस a1 dy by dx प्लस a2 y इज इक्वल टू आर एक्स, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF पार्ट निकालना हमने सीखा, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF पार्ट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड साइड पहले 0 करेंगे, देन वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन फैक्टराइज इट, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन जो पार्ट हमें m1 m2 की वैल्यू मिलेगी उसको उसके आधार पे हम CF निकाल देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज PI फॉर PI। तो केस 1 PI के लिए RX आपका अलग अलग हो सकता है। बेसिकली केस 1 हमारा है RX इज इक्वल टू e टू द पावर AX। मान लीजिए एक्सपोनेंशियल e टू पावर AX है यदि PI, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको याद है कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया a0 d2 प्लस a1 d प्लस a2 ऑपरेटिंग ओवर y इज इक्वल टू RX। अब यहाँ RX आपका e टू पावर AX है, देन PI CF तो हम पहले निकाल चुके हैं, उसके बाद अब PI की बात करते हैं। PI के लिए 1 अपॉन फॉर्मूला जनरल जान लीजिए, दिस विल बी FD इज दिस इज कॉल्ड FD। In short, we can write this expression like the FD. FD is function of D. Operating over Y is equals to RX. अब यहाँ R की वैल्यू हमारा e to the power x है। This is general form for PI. General formula for PI. अब RX की वैल्यू अलग अलग लेते चलें। RX की वैल्यू e to the power AX है। Now put it here. We get 1 upon FD. Whatever FD. यहाँ पे तो second order है, कुछ भी e to the power AX. Okay. Then e to the power AX, then by formula of this becomes 1 upon FA e to the power AX. This is the formula, यानी PI आपका हो जाएगा, यहाँ बताना पड़ेगा A should not equals to 0, ये बोलना पड़ेगा हमको। That is 1 upon FT e to the power AX becomes 1 upon FA e to the power AX, provided FA should not equal to 0। यदि 0 होगा तो 0 होगा तो ऊपर हम x बढ़ाएंगे, नीचे इसका d करस्पोंडिंग पर डिफरेंशिएट करके देन पुट a एंड दिस बिकम्स e to power x। ये करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे प्रोवाइडेड f dash a should not equal to 0। अब यदि ये 0 होगा देन वी प्रोसीड फॉर दैट। इफ
fa0, then this happen. If f dash a equal to 0, then we proceed next. ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर f डबल डैश a e to power ax, okay, provided f डबल डैश a is not equal to 0. तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला रहेगा फॉर आर एक्स इज इक्वल्स टू ए के करस्पॉन्डिंग. ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो ये आपका आगे रहेगा. तो ओके, तो दिस इज आवर केस 1 फॉर पी आई. अरे एक छोटा एग्जाम्पल उठा लेते हैं. छोटे एग्जाम्पल को सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, लेट एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e टू पावर 3x. मान लीजिए ये प्रॉब्लम है. अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट फॉर CF, ठीक है, वी मेक y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0. ओके, और वी कैन राइट d2 माइनस 3d प्लस 2 ऑपरेटिंग और y इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम लिखेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन वेयर डबल डैश, ये आपको पता है, वेयर d मीन्स d dx. ओके, ये नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से d कॉमन हो गया, d माइनस 2 माइनस 1 d माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू 1 हो गई और d की वैल्यू 2 हो गई. तो दोनों रियल और अलग अलग हो गए. देयरफॉर CF पार्ट आपका हो गया, ओके, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x. ओके, ये आपका इसका CF हो गया. नाउ फॉर PI इक्वल्स टू 1 अपॉन FD की जगह पे ये पूरा पोर्शन एज इट इज रखेंगे. हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑपरेटिंग ओवर e टू पावर 3x, या 3d था. ओके, नाउ अब हम जो भी इसका कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, वो कोफिशिएंट हम यहाँ d की जगह पे रख देंगे. क्या आ रहा है, 1 अपॉन 3 3 जा 9, ये भी जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 e टू पावर 3x. तो दिस विल बिकम, ये कट गया, 1 अपॉन 2 e टू पावर 3x. Therefore the complete solution becomes complete solution y. This is complete solution y is equals to CF plus PI. CF plus PI कितना हो गया, ये हो गया C1 e to the power x plus C2 e to power 2x plus 1 by 2 e to power 3x. Okay, this is your CF and one case of PI. This is enough for today.